आपके सेशंस होते हैं कि जो अच्छा। इंटरव्यू बेस्ड सेशन है, तो वहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिली। मतलब वहाँ ऐसा हुआ कि आपके मतलब मेरे पर्सनैलिटी स्किल या फिर बोलने का तरीका और आप क्या मिस्टेक करते हो, तो हुँ, वो वाली चीज़ जितने वो सेशंस होते हैं मॉक सेशन, तो हुँ, वो चीज़ काम की है। वहाँ से जब मैं प्रोफाइल और एक करता गया एचआर इंटरव्यू, एचआर मॉक्स, तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिलती गई आप आपके रिज़्यूमे में, आपके बोलने के तरीके में, तो वो वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. We are back with a new testimonial video. Today we have Antriksh with us. Antriksh recently हाँ, got placed in Pangea Tech as an SDE1 at a whopping हुँ, package of 8.8 LPA. He did his BTech in civil engineering and he completed it in 2019 only. After that, he worked for some time as a site engineer in the civil engineering profile only, but he wanted to हुँ, upskill himself, so he joined AccioJob. It's been more than a year for him in AccioJob that he has been studying with us, but now he is finally placed. So today we will be talking to him and trying to understand how he did it and what was the secret sauce behind cracking this company at an 8.8 LPA package. So हुँ, let's welcome Antriksh. But before moving forward, take a moment to subscribe our channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And yeah, without wasting any more time, let's jump into the video. Uh, Thank you, Antriksh, for taking out time to do this with us. First of all, हाँ, यस, यस, congratulations यस। for finally थैंक यू getting. वेरी मच। Yeah. या Okay. So, can you quickly introduce yourself for our viewers? Okay, so my name is Antariksh Salse. I've been I've done my engineering in as ma'am have said that in civil engineering. Later I have worked as in civil engineer for quite few time. So Hmm. I thought that I needed to upskill somehow. So I've worked as a front end engineer. Still there was some skills that was I was lacking behind. And Hmm. so I later found out about AccioJob and how they upskill you and various aspects. So I thought that as I am a front-end engineer, I need to upskill in that sector only. So I gone for an AccioJob, and later on I choose the Stack as my means upscaling program. Hmm. And right now I've completed that AccioJob and place got an package as in at Hmm. Pangea Tech as a Stack developer in SD1. So Okay. that's about it. अंडरस्टूड। ठीक है अंतरिक्ष। सो लाइक यू मेंशन कि आपने अपनी जो बीटेक है वो सिविल इंजीनियरिंग में की थी, हुँ, राइट? और उसके बाद आपकी जॉब भी लग गई थी एज अ साइट हाँ, इंजीनियर, हाँ। राइट? सो आपको ये रियलाइजेशन की हुई कि मतलब आपको अपनी स्विच करने की जरूरत है फील्ड, एंड वर यू नॉट हुँ, लाइकिंग इट, एंड हाउ वाज दैट होल प्रोसेस फॉर यू? So I was have done a job for a few months and means वो later on वो उतना कुछ पे नहीं करते थे और means I had there was a few times that my payment was 1 month late or this kind of thing had happened. And means sometimes and after the as we all know that COVID happened and I had to got a few struggles in it. So I thought that means if I want to upskill in myself, what do I like? So I thought that I like computer so much. So how can I do much thing in computer and how can I get paid for it? So front end was the thing that I discovered from the internet that this is also kind of a career path, and I started to getting hand on it, try to practice it by myself, and later on as we see that means I got a job but at a very low and initial package means just at a startup. बाद में मैंने ये सोच लिया कि अ, मुझे और अपस्किल होने की ज़रूरत है और यहाँ पे मैंने देखा कि एक्यूजॉब एक प्लेटफ़ॉर्म है जो वहाँ पे हम अपस्किल हो सकते हैं। तो मैंने मंचस्टैक जॉइन की। जैसे मैंने वो फ्रंट एंड का किया एज़ आई हैव वाज़ अर्लियर फ्रंट एंड डेवलपर आई न्यू फ्यू बट मतलब फ्यू कांसेप्ट्स पता थे मुझे मगर जैसे मैं और डेप्थ में गया राउंड 2 या फिर मॉड्यूल सेकंड में वगैरह, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अच्छा ये जो चीज़ें हैं वो नहीं है मेरे लिए और यहाँ पे मैं अपस्किल कर सकता हूँ। या फिर ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी और मुझे ज़रूरत थी क्योंकि मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए थे उस टाइम मगर मुझे वही चीज़ लैक कर रही थी। और जब मैंने नोड.जेएस का भी कोर्स किया तब मुझे डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिली जावास्क्रिप्ट में।
तो वो हुँ, मुझे एक बात बढ़िया मिली और वही चीज़ मुझे इंटरव्यू में काम आई कि हुँ, आपकी जो कुछ-कुछ कोर कांसेप्ट है वो वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि कोर्स वाइज़ जब हम मॉड्यूल लेके प्रैक्टिस करते और से कुछ-कुछ सेशन होते थे कि क्वेश्चन एंड आंसर्स टाइप सेशन। तो हुँ, कभी लेक्चर नहीं हुआ तो वो थोड़ा बहुत पार्ट लेते थे, तो उससे मुझे आइडियाज़ आए और उनके नोट्स से मैं प्रिपेयर करता गया तो मुझे वो बहुत काम में आई चीज़ें और लेटर ऑन मैंने थोड़ा उसी के बेस पे फ़ायदा हुआ और क्रैक की थी। अच्छा। सो अंतरिक्ष लाइक यू मेंशन कि आपने लाइक फ्रंट एंड हुँ, डेवलपमेंट वाज़ हुँ। समथिंग जो आपको स्टार्टिंग से ही उसमें इंटरेस्ट था, राइट? और हुँ, थोड़ा हुँ। बहुत आपने पढ़ भी लिया था, पर लेकिन आप हुँ, और हुँ। थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते थे, है ना? हुँ, हुँ। तभी आपने आके जॉब का देखा था। तो आई एम थिंकिंग आपने कोई एड देखा था शायद आके जॉब का, राइट? हाँ, यस मैंने इंटरनेट पे ऐड देखा था और कुछ टेलीग्राम ग्रुप भी थे, वहाँ से आपकी एड्स आई थी मतलब ये अपस्किलिंग प्रोग्राम है वगैरह, तो मैंने ट्राई आउट करने का सोच लिया। ओके, सो आपने और कोडिंग बूट कैम्प से भी अंतरिक्ष कंपेयर तो किया ही होगा। सो वो क्या रीज़न था जिसकी वज़ह से आपने सोचा कि हाँ, मुझे आके जॉब से ही पढ़ाई करनी है? हाँ, तो मेरा ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, जब जॉइन किया तब ओके थोड़ा ओके लगा था, हाँ ठीक है। जब मैंने मॉड्यूल स्टार्ट की या फिर जब आपके सेशंस होते हैं कि जो अच्छा। इंटरव्यू बेस्ड सेशन है, तो वहाँ पे बहुत क्लैरिटी मिली। मतलब वहाँ ऐसा हुआ कि आपके मतलब मेरे पर्सनैलिटी स्किल या फिर बोलने का तरीका और आप क्या मिस्टेक करते हो, तो हुँ, वो वाली चीज़ जितने वो सेशंस होते हैं मॉक सेशन, तो हुँ, वो चीज़ काम की है। वहाँ से जब मैं प्रोफाइल और एक करता गया एचआर इंटरव्यू, एचआर मॉक्स, तो वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिलती गई आपके रिज़्यूमे में, आपके बोलने के तरीके में, तो वो वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अच्छा यहाँ हुँ, मैं लैग करता हूँ। अगर मैं टेक्निकली भी फाइन हूँ, तो भी थोड़ा बहुत वहाँ पे लैकिंग है, जिसकी वज़ह से हुँ, मैं मिस्टेक कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें क्लियर हुई तो मतलब वो वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा भाई मतलब कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरा, ये जॉइन हुँ, होके। तो लेटर अंडरस्टूड। ऑन और अपस्किल होते गए तो और सेशंस होते गए तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से वो चीज़ें क्लियर होती है कि आपका मतलब बोलने का तरीका और टेक्निकल स्किल वो दोनों चीज़ें हुँ, कवर अप होने के बाद मतलब एक फुल कॉन्फिडेंस आया था कि हम अब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। हुँ, अंडरस्टूड। ठीक है। सो अंतरिक्ष तुम्हें आखिर जॉब में 1 साल से तो ऊपर हो ही गया है, राइट? हाँ, आई थिंक हाँ। 3 मंथ्स में आपकी जॉब लगी है हाँ, फाइनली। हुँ, हुँ। तो मतलब और आप साथ में कुछ और भी कर रहे थे या फिर आप फुल टाइम सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे आके जॉब के साथ? नहीं मैं बीच में एक एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर ही लगा था महिंद्रा फाइनेंस में, तो वहाँ से मैं वहाँ से मैं एज़ अ फ्रंट एंड की ही कर रहा था मगर वहाँ पे मेरी कभी-कभी अपस्किलिंग होती थी या फिर मुझे कॉल्स आते थे एक्यू जॉब से कि आपका मॉक सेशंस देना है या हुँ, आप एक रिपीट एक फ्रंट एंड का टास्क ले लो और उसपे उसके बेसिस पे आप स्टडी करो ताकि आपका कुछ छूट ना जाए या फिर लॉन्ग गैप ना आ जाए। हुँ, हुँ, तो वो लॉन्ग गैप की वजह से मतलब आपका आगे जाके प्रॉब्लम ना हो इसलिए मेरे सेशंस होते थे कंटिन्यूअस। तो हुँ, मेरी स्टडी साइड बाय साइड भी चालू थी कि मैं कहीं छूट ना जाऊँ उसकी भी मतलब लॉन्ग गैप ना पड़ जाए। अच्छा, तो वो ठीक चीज़ें है। मेरे काम भी लगी। ठीक है अंतरिक्ष। सो आपको जैसे 1 साल से ऊपर हो गया आगे जॉब में, हुँ, तो हुँ। इस कंपनी में प्लेस होने से पहले आप और कितनी कंपनीज़ में बैठे थे? और मैं मतलब टेस्ट में तो आइडिया नहीं मुझे ऑलमोस्ट अराउंड 5 टू 7 इसमें बैठा था मैं। तो अच्छा। कुछ हुआ था मतलब कुछ फर्स्ट राउंड तक गए थे बट हुँ, कुछ नेक्स्ट राउंड में प्रोग्रेस नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि मतलब वो हुँ, हुँ, कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कुछ क्वेश्चंस भी टफ-टफ आते थे, तो हुँ, वो थोड़ा एडजस्ट करके पढ़ाई करके मुझे बाद में 1-2-4 होने के बाद समझ में आया कि मैं ये कवर अप कर लूँगा, नेक्स्ट टाइम ये स्टडी करके जाना है और वो वही कुछ-कुछ चीज़ें मैं पढ़ के आता था और मेंटर से पूछता था। अच्छा, ठीक है। तो कूल। सो अंतरिक्ष जैसे आपने स्टार्टिंग से ही फ्रंट एंड पढ़ा है, राइट? और आपने आके हुँ, जॉब में आके भी मर्न स्टैक ही चूज़ किया। तो हुँ, मैं ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, कहीं न कहीं हुँ। उनको डीएसए से थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। हाँ, दे हाँ। थिंक डीएसए टफ है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि फ्रंट एंड ईज़ी है, मैं वहाँ पे चला जाऊँगा। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि कितना डीएसए काम आता है एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर ऑल्सो और कितना फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को उस पे भी? Okay, DSA part is quite tough. I agree with that. एंड हुँ, वहाँ पे अगर बच्चे वहाँ देखिए मुझे भी थोड़ा डर था उसमें मगर
यहाँ पे एज़ इंटरव्यू में बैठने जाओ तो ऐसा नहीं होता कि सभी लोग वो क्वेश्चन्स पूछते हैं, मगर बहुत सारी जगह पे अगर आप हायर पैकेज में जाना चाहो तो डीएस से थोड़ा बहुत तो मस्ट है। एटलीस्ट वो हुँ, बेसिक जो आप मतलब कोर्स में जाओगे तो वो इनिशियली आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे, इतना काफ़ी है। हुँ, तो वहाँ से आप अगर करते हो तो बेस्ट ही है। मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा बहुत कर लो, अगर आपको उससे प्रैक्टिस होती है तो हुँ, आपको इंटरव्यू देने में आसानी जाएगी। ऐसा नहीं कि कंपल्शन ही है, मगर काम आती है वो चीज़ें। आपको मतलब जॉब में लगने के बाद भी इतनी यूज़ नहीं होती है, मगर आप जब सोचते हो कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें, तो वहाँ पे थोड़ी वो वाली प्रैक्टिस भी काम आ जाती है। इसलिए अंडरस्टूड। ट्राई करो कि बेसिक-बेसिक एरे से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चंस, एरे और ऑब्जेक्ट्स मैनिपुलेशन, वो सारी चीज़ें अगर आपका हैंड है, तो हुँ, फिर वो चीज़ें बहुत काम आती है यहाँ पे, तो आपका सोचने में टाइम कम लग जाता है। तो उसके हुँ, बेसिस पे अगर स्मॉल भी प्रैक्टिस की, तो वो चीज़ें आगे जाके काम आ जाएगी। या फिर आपको ग्रेटर एज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर ही जाना है इनिशियली। अगर आप हुँ, फ्रेशर ही तो इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन। बट एरे एंड ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन का भी आ गया आपको, तो उसके रिलेटेड प्रैक्टिस करना। तो वो आ हुँ, गया तो एटलीस्ट वो तो भी मतलब आपको हैंड बाय हैंड या होना चाहिए। हुँ, तो उसका अगर प्रैक्टिस होगा तो आप मतलब आसानी से क्रैक कर पाएँगे और आपको मतलब आगे जाके भी फ़ायदा होगा। हुँ, तो वही मेरा एक व्यू है ऐसा। अंडरस्टूड। कूल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हुँ। इस कंपनी में आपकी जॉइनिंग आ गई है या फिर अभी टाइम है इसमें? हाँ, जॉइनिंग डेट अभी आई नहीं, क्योंकि मेरा अभी 3 मंथ्स का अभी करंटली नोटिस पीरियड है, तो अच्छा। अभी के लिए टाइम है इसमें। ओके, ठीक है अंतरिक्ष। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द हुँ, एंटायर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ दिस कंपनी ओनली। हुँ, थोड़ा-सा बताओ कि इसमें कितने राउंड्स हुए और किस तरह की क्वेश्चंस पूछे गए? एंड आई एम श्योर बिकॉज़ फ्रंट हुँ, एंड आपने काफ़ी पढ़ा है, तो प्रोजेक्ट्स भी पूछे थे, इन लोगों ने नहीं पूछे थे। थोड़ा-सा वो हुँ। शेयर। ओके, सो मेरे टोटल हुए 3 राउंड्स। तो फर्स्ट राउंड था एक जेनेरिक इंट्रोडक्शन, उन्होंने कंपनी का इंट्रोड्यूस किया, क्या करती है, किस बैकग्राउंड से है, या हुँ, फिर लोकेशन वगैरह क्या है कंपनी की, और मतलब मेरा क्या रोल होगा, एंड बेसिक हुँ, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जो कोडिंग क्वेश्चन थे वो मुझे लगा कि एक इंटरव्यू बिट के जो नोट.जेएस के क्वेश्चंस थे, तो वो वाली पार्ट उन्होंने थोड़ा इंक्लूड किया था, और थोड़ा उन्होंने मतलब जनरल नॉलेज टाइप कवर किया था कि तुम्हें एचटीएमएल सीएसएस का थोड़ा बेसिक आता है क्या? फिर या अच्छा। फिर उन्होंने पूछा था कि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है क्या? तो उसके रिलेटेड हुँ, थोड़े सवाल थे कि एचटीएमएल अगर बाय डिफ़ॉल्ट मतलब रिस्पॉन्सिव होता है कि नहीं, या फिर उसके या फिर जावास्क्रिप्ट के थोड़े इवेंट लूप के रिलेटेड थोड़े कोर क्वेश्चंस। तो ओके। उन्होंने ओ ओवरऑल थ्योरी पार्ट ही था फर्स्ट राउंड। हुँ, तो वो सारा कवर किया, तो सेकंड राउंड में कोडिंग क्वेश्चंस हुए थे। मुझे 2 कोडिंग क्वेश्चन और एक टास्क दिया था सीएसएस का, एक क्लॉक बनाने के लिए। हुँ, तो बेसिकली वो हुआ था, एंड क्लॉक के अंदर उन्होंने थोड़ा बहुत गाइड किया था कि कैसे अगर अटकते हो तो भी वो हुँ, थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दें कि हिंट दे सकते हो कि मुझे नहीं आता सर और मैम, क्या मैं हेल्प ले सकता हूँ? तो वो थोड़ा बहुत हिंट देते हैं, अगर नहीं हुआ था तो उन्होंने गूगल के सर्च करने के लिए भी अलाउ किया था। आप हुँ, मुझे बस सॉल्यूशन दो, अगर आप सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, बस चैट अच्छा। जीपीटी वगैरह मत यूज़ करना। अच्छा, तो ठीक है। वो वाला पार्ट था। हुँ, तो गूगल पे सर्च करने के बाद थोड़े हिंट लेने के बाद मैं वो क्वेश्चंस का क्लियर अप कर पाया था। तो उन्होंने कहा था इट्स ओके, आई मीन इट्स फाइन, वी विल गेट बैक टू यू। सो अच्छा। देन उन्होंने 1-2 दिन बाद रिप्लाई किया कि आप आगे जा सकते हो। फिर थर्ड राउंड में उन्होंने जनरल ओवरव्यू जैसे एचआर टाइप क्वेश्चंस होते हैं या फिर मैनेजरियल क्वेश्चंस होते हैं, तो हुँ, हुँ, वही होता है कि आपके हॉबीज रिलेटेड क्वेश्चंस, एंड मेनी ऑफ द क्वेश्चंस आपके करियर से रिलेटेड, व्हाई यू आर स्विचिंग, यू आर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, एंड लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हुँ। तो वो बेसिक कवर होने के बाद मुझे 1-2 दिन बाद उनका मैसेज आता है कि ओके, यू हैव बीन सेलेक्टेड। अच्छा, पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था जब उन्हें फाइनली पता चला आपकी जॉब लग गई है? हाँ, पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए थे। उनको इनिशियल ये था कि हाँ, मतलब बहुत दिनों बाद आप सिलेक्शन हो गया हुँ, है, और
मतलब यही था इनिशियल, आप आगे क्या प्लान है, वो कंपनी कैसी है वगैरह एक बार थोड़ा जान लो, समझ लो और हुँ, फिर अ, इनिशियली मोमोज़ कराएँगे लिटरली। मीन्स हुँ, इनिशियली थोड़ा 5 एक मिनट बात करते हो, कांग्रेचुलेट वगैरह किया था। हुँ, तो ये सिर्फ़ थोड़ा हैप्पीनेस था। मेरे घर वालों को भी बताया था, रिलेटिव्स का वगैरह, उन्होंने भी थोड़ा बहुत कांग्रेचुलेट किया था कि हुँ। ओके गुड जॉब, कीप इट अप। अंडरस्टूड। तो ठीक है अंतरिक्ष। सो लाइक यू मेंशन कि आप पहले थोड़ा बहुत अपने आप तो पढ़ते ही थे और आपको काफ़ी हुँ, चीज़ें हुँ, पहले से आती थी। बट आखिर जॉब में हुँ। जो मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं उसकी वज़ह से आपको काफ़ी हेल्प हुई थी। मतलब आप हाँ, बार-बार काफ़ी हेल्प देते हुई थे थी। और आपकी उसमें पता चल गया कि आपको कितना आपको हुँ, प्रिपेयर करने की ज़रूरत है लाइक इंटरव्यूज़ में, हुँ, राइट? हुँ। तो आप थोड़ा मतलब बता सकते हो कि एचआर राउंड्स में जिस तरीके के क्वेश्चन्स पूछते हैं, स्पेशली हुँ, समवन हुँ, लाइक यू जिसका जैसे सिविल बैकग्राउंड है और हुँ, 2019 के पास आउट हो, थोड़ा करियर गैप भी है। हुँ, तो हुँ। ऐसे क्वेश्चन को कैसे आंसर करना चाहिए सो दैट द एचआर आल्सो इज कन्विंस्ड कि हाँ मतलब दिस इज द राइट डिसीजन टू हायर दिस ओके, स्टूडेंट। हाँ। सो हुँ, एचआर राउंड्स में मोस्टली वैसे क्वेश्चन, क्योंकि आप आपको भी वो डाउट पहले से वो रहता है कि अगर हाँ, मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ या फिर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे सच में करना चाहिए नहीं। तो हुँ, एचआर राउंड मोस्टली हर कंपनी नहीं पूछती है, मगर कुछ-कुछ कंपनी या फिर मैनेजर वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो उसके लिए अगर मतलब जैसे मेरे एचआर मॉक्स होके हुए थे, तो मैंने भी ये डाउट उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि तो एज़ यू वर इन द कोविड टाइम, तो आप कोविड का एक रीज़न बता सकते हो या फिर जेन्युइन मतलब दूसरा भी कोई रीज़न हो सकता है कि आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन थी और उसकी वज़ह से मुझे स्विच करना पड़ा और बाद में जैसे आया तो अभी मेरा ऑलमोस्ट ईयर खत्म हो चुका था। हुँ, तो मैं बोल सकता था कि मैं अब यहाँ पे ही हूँ, मैं और इंटरेस्टेड हूँ। जैसे अब मैंने 1 ईयर पूरा कंप्लीट किया और मैं स्विच बैक होने का नहीं चाहता हूँ, मतलब सिविल में जाना चाहते थे। ये क्वेश्चन मुझे आया था कि आप इतना मतलब इतने इयर्स कंप्लीट किए, अभी आप आईटी में आए वापिस अभी, तो उसमें नहीं करना है क्या? हुँ, तो मैंने नहीं, मैं अभी यहाँ तक आया हूँ, यहाँ तक मैंने कंटिन्यूएशन किया, मतलब मेरा डेडिकेशन है ये फ़ील्ड में। तो वो हुँ, बस ये करना चाहते हैं कि आप डेडिकेटेडली ये फ़ील्ड में रहना चाहते हो या फिर आप हुँ, भटक नहीं रहे हो। तो हुँ, आप अगर आप वो क्लियर कर पाते हो, उनको बोलते हो नहीं मेरा नहीं मैं यही करना चाहता हूँ, तो फिर वो ओके हो जाता है, उतना बाद में सवाल नहीं आते। तो ये वाली अंडरस्टूड। सारी चीज़ें एचआर वो अब एचआर से अगर मॉक में ये पूछ लेते हो तो वो क्लियर अप कर देते हैं और आप राइट डाउन करते जाओ। आगे एक और एक्स्ट्रा मॉक लिए थे तो उन्होंने और रिफाइन कर दिया था। मतलब जितने बार वो हुँ, प्रोसेस किए थे वो रिफाइनमेंट उतना अच्छा होते गया था। तो हुँ, फिर भी फ्लो थोड़ा अच्छा हो गया था उसकी वज़ह से। हुँ, अंडरस्टूड। आई थिंक आप जितनी बार मॉक दोगे, जितना प्रैक्टिस हाँ, करोगे उतना ही आप रिफाइंड प्रैक्टिस आंसर बार-बार दे हाँ, पाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड अंतरिक्ष। ठीक है, सो अब आपको आखिरी जॉब में 1 साल के ऊपर हो गया है, राइट? काफ़ी टाइम से हुँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, फाइनली आपकी जॉब लग गई है। हुँ। क्या प्लान है अभी थोड़ा पढ़ने का प्लान है या फिर थोड़ा ब्रेक दोगे अपने आप को? हाँ, अभी तो मेरा मतलब इनिशियली जॉब पे ही फ़ोकस करने का प्लान है। हुँ, तो अगर मैं चाहूँगा तो मतलब अब मैं कभी भी जाके कोर्सेज़ या फिर मतलब उनके सेक्शंस पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो मेरा प्लान है कभी नोट्स पढ़ना, अगर 1-2 महीने बाद अगर मैं सेटल हो जाता हूँ, थोड़ा बहुत वर्क हुँ, एनवायरनमेंट पता चल जाता है कैसे क्या है, मैं कितना हुँ, टाइम निकाल सकता हूँ। तो अपस्किलिंग करना तो हमेशा ऑलमोस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, बाद में भी आता है तो हम क कभी-कभी ऐसा होता है कि कांसेप्ट भूल जाते हैं, तो कांसेप्ट के लिए री-रिवाइज़ करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है। इसलिए अगर आप थोड़ा फ्लो में भी रह गए, मतलब डेली के हाफ आवर वगैरह, तो या फिर डेली नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 2 टू 3 डेज़ सैटरडे या संडे अगर आप हुँ, मतलब 1 घंटा भी बैठ के रिवाइज़ कर लेते हो, तो थोड़ा फ्लो कंटिन्यूएशन में रह जाता है। तो वो मेरा वैसा ही प्लान है कि मैं अभी भी एटलीस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट संडे या फिर सैटरडे में थोड़ी देर बैठ के वो हुँ, रिवाइज़ करते रहता हूँ मेरे कांसेप्ट, तो एटलीस्ट फ़ुल फ्लो नहीं टूटता है मेरा। या फिर हुँ, अगर कुछ सवाल आया या फिर मुझे कुछ डाउट आया तो मैं जाके इमीडिएटली मैं रिकॉल कर सकता हूँ उसको। तो वही अंडरस्टूड। मेरी अभी प्रैक्टिस रहेगी। ओके। Great, great. That's great to know, Andrish. हुँ, One हुँ। last question that I would like to ask, then we can end it here. हुँ, हुँ। Since you are a person who is from a non-tech background, right? हुँ, और हुँ। आपका करियर गैप भी हो गया था, सिविल हाँ, हाँ, इंजीनियरिंग भी हाँ। की है आपने और इवन जॉब भी की हुई है दूसरे फील्ड हुँ, में, हुँ। बट उसके बाद आपने डिसाइड करा कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है और हुँ, फाइनली हुँ। आपने एक जॉब ले भी ली, राइट? तो एनी एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स जो कि सोच रहे हैं अपना करियर स्विच हुँ, करने हुँ। का, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये रहता है कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा हेजिटेंट हुँ, है हुँ। और उन्हें इतना डिसिप्लिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। सो व्हाट एडवाइस वुड यू ओके। लाइक टू गिव देम? So the advice that I would like to give is इनिशियली आप ये मत सोचना कि मतलब
क्या हो गया? इनिशियली वो सबके मन में डर भी होता है और डाउट्स रहते हैं कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, आगे कैसा होगा? तो फर्स्ट राउंड में भी आप फ्रेशर हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो सकता है, मुश्किल हो सकता है कि जाना, मगर आप एक बार इंटरव्यू क्लियर कर देते हो और एक 1 आध साल बिता लेते हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं होता आगे जाके। और मतलब आगे मुझे भी इतना कोई सवाल नहीं पूछता कि आपका बैकग्राउंड क्या था वगैरह। तो इनिशियली वो थोड़ा हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिस कर लो, वो क्वेश्चंस भी बेसिक आप नोट डाउन कर लो कि आगे क्या सवाल आ सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस जो आपके करियर के स्विच के रिलेटेड, या फिर आपका ब्रांच चेंज हुई, या फिर नॉन टेक टू टेक बैकग्राउंड आए। तो अगर वो क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर ले तो 1-2 बार, तो वो सवाल जनरली 1-2 ही होते हैं, ज़्यादा उससे पूछते नहीं। अगर आपका टेक्निकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा तो मतलब कंपनी कंसीडर ही कर लेती है, वो आगे इतना मतलब मैटर नहीं करता। आपको इनिशियली थोड़ा डर लग सकता है, या फिर 1-2 महीने आपको लग सकता है कि नहीं, मीन्स टाइप ऑफ ओवरवेलमिंग सिचुएशन की मुझे नहीं आता, मैं तो नॉन टेक से हूँ और मेरे आगे कितने लोग बहुत-बहुत बढ़िया कर रहे थे। तो ऐसी भी चीज़ें मुझे आई थी स्टार्टिंग में, मगर जैसे 3 टू 4 मंथ्स का स्पैन बढ़ गया, मेरा हैंड बैठते गया, तो उसमें तो वो वाली चीज़ बाद में आती भी नहीं है। मतलब आपका डर भी निकल जाता है, और मतलब आप ये नहीं सोचने लगते हो कि मतलब बैकग्राउंड स्विच की वजह से प्रॉब्लम होगा। तो इनिशियली आपको लग सकता है, मगर वो क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस की तो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है और आपका 3 टू 4 मंथ्स एक स्पैन गुज़र गया, तो फिर वो मतलब बाद में वो सवाल आपको वरी नहीं करते। तो Understood. ये I think that's fair piece of advice, Antriksh. Thank you so much again for taking out time to do this with us. We wish you all the best for your future. ओके, थैंक And यू। yeah, good luck. Thank you so much. थैंक you very much, ma'am. That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful. If you guys are also interested in learning coding, just go to our website and take the skill eligibility test. The test will definitely help you in identifying which course is best for you, be it Monstack or Java full stack. Both the courses have amazing instructors and mentors to help you out throughout your journey. If you're interested, just check out the link provided in the description below and take the test. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. And what kind of videos do you want to see in future? Do let us know in the comment section below, and we will see you in the next one. Thank you so much.